ये ट्रेन दो संस्कृतियों को जोड़ने वाली कड़ी है. That's the only word I wanted to say, because when I visited Manipur, the historical relations between the states of Manipur and Tripura were explained to me. Maharaja Sahab explained me during the car journey to the airport, and Honorable Chief Minister explained during the lunch. This is a great relationship. This relationship has to be cemented. So that's why when Honorable Chief Minister of Manipur requested this, I asked Honorable Prime Minister, और Prime Minister साहब तो North East के लिए he always has such a special place. अश्विनी, जोड़ना इनको तुरंत जोड़ो. He always tells us that जो काम करना है वो काम जल्दी से जल्दी करो, because देश ने 60-70 वर्ष ऐसे ही गवा दिए कुछ ऐसे लोगों के कारण जो कि काम करना नहीं चाहते थे, केवल एक दूसरे को दोष देना चाहते थे, केवल प्रॉब्लम्स लाना चाहते थे. This is the time to bring solutions. This is the time to change the mindset. That's what Prime Minister Honorable Shri Narendra Modi ji keeps telling us in the entire all the meetings, everywhere he tells us. So we are guided by him, we are inspired by him, we are blessed by him, that the More line, which is very important strategically, which is very important for Manipur, which is very important for the entire connectivity between India and the entire Southeast Asia. So when this point came up during the discussions in Manipur visit, I was really impressed by Honorable Chief Minister, Honorable Minister and other friends who explained in such good detail that I told the officers that we must do it immediately, and then we took Honorable Prime Minister's blessings and immediately issued the orders. Within 4-5 hours, I think the orders got issued. So that was very nice of you, sir. The entire credit goes to you. You explained the projects very nicely, the importance of this project very nicely you explained. So without taking much time, I once again thank everybody for all your blessings. I am a very ordinary Karyakarta to which all of you are blessing and giving your guidance, and hopefully very soon I would like to come to Tripura, and Dada, in your guidance, let us see what all we can do in Tripura. I am especially thanking you for the Akhora connection. That's very important for our country. उससे एक historical, एक strategic linkage बनेगा. तो आप जितना इसमें सहयोग कर रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद. एक बार आपके साथ बैठ के मैं इसको रिव्यू करूंगा तो इसमें और तेजी आएगी. एक बार फिर आप सबको बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आगे और काम करते रहेंगे. जनशताब्दी एक्सप्रेस उसका शुभारंभ होने जा रहे हैं. इस कार्यक्रम में वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी कुमार वैष्णव जी, मेरे मित्र कर्मठ ऊर्जावान व्यक्तित्व जी किशन रेड्डी जी, हमारे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का जो मंत्रालय वो आप भी देखते हैं, और केंद्रीय प्रतिमंत्री हुआ श्री आज मणिपुर और त्रिपुरा के बीच बहुत पुराने संबंध है, कल्चरल भी है, वैधानिक भी है, और इस दोनों को आज नरेंद्र भाई मोदी नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने रेल के माध्यम से जोड़ दिया है. हमारे साथ मणिपुर का बहुत पुराना संबंध है, हमारे राज परिवार के साथ. 3 महारानी हमारे मणिपुर से है, इसलिए हमारे खून में मणिपुर है, और उसके साथ आज जोड़े जाना है रेल के माध्यम से. जनशताब्दी एक्सप्रेस, और बहुत कम समय में सिलचर तक तो 4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 300 किलोमीटर, और जीरीबाग का
सिलचर से 40 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है और उसको भी हम लोग 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद रेलवे का जो ट्रैक की डेवलपमेंट किया जाएगी तो उसके बाद में और भी कम समय लगेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ रश्मि जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप भी जिस तरीके से आप काम करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको इतने अच्छे अच्छे मंत्रालय दिया है और इसको जिस तरीके से आप निभा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरे देश भर, आईटी सेक्टर में हो और रेडियो सेक्टर में हो, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। आप माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना कम समय में पूरा करेंगे कि आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो टैलेंट है, वो मेरिट है। और साथ ही साथ मैं दोनों प्रदेश के मणिपुर और त्रिपुरा के सभी जनताओं को बधाई देता हूं जो आज ये जनशताब्दी एक्सप्रेस अगरतला से चलेगी, जिरीबाम में पहुंचेगी, जिरीबाम से चलेगी, अगरतला में आएगी और वीकली 3 डेज शुरुआत होने जा रहे हैं, 3 दिन चलेगी। और ये सिलचर में अगरतला त्रिपुरा में आने वाले बहुत लोग होता है और उसके साथ अब मणिपुर जुड़ जाएगा और जल्दी से जल्दी इंफॉल के साथ जुड़ जाए। मैं जानता हूँ प्रोजेक्ट है तो व्यवस्था हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी है, मैं उनको सभी समय आदर सम्मान करता हूँ, मेरे गार्जियन है और हमारे से बड़े हैं। मेरा पूरा विश्वास है हम दोनों मिलकर त्रिपुरा मणिपुर का जय भारत, जय मणिपुर, जय त्रिपुरा, धन्यवाद। माननीय श्री बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री त्रिपुरा, माननीय Kishan Reddy, Honorable Minister of Culture, Tourism and Government, and all. Kumar Dev ji, Ratna Bhumi ji, and other honorable MPs, and area minister, MLA, and authorities of the railway. It's a great opportunity for me to share this. And as we are looking towards this जो कार्यक्रम है मित्रों, मीडिया के मित्रों जो अगरतला, जिरीबाम, इम्फाल और दिल्ली से जुड़े हुए हैं, देवियों Honorable Chief Minister Manipur, Honorable Union Ministers, Honorable MPs, all the officials, members of the media, और रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारियों का आज भारतीय रेल अपने अभूतपूर्व इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। यात्रियों की सेवा और सुविधा में अग्रसर भारतीय रेल शुरू करने जा रही है गाड़ी संख्या 12097 12। चीफ मिनिस्टर, गृह मिनिस्टर ऑफ स्टेट, भारत सरकार और ढेर सारे वीआईपी डिग्निटरीज मौजूद हैं। ये जो दिखाता है गवर्नमेंट की ये इच्छा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को अच्छी तरह से नमस्कार।
माननीय केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, हम सब जी श्री एन बीरेंद्र सिंह जी और हमारे कैबिनेट मंत्री डोनाल्ड जी किशन रेड्डी जी और हमारे साथी मंत्री आरके रंजन जी, हमारे सब एमपी और हमारे एमएलए और मिनिस्टर बापते जी और शुक्रवार जुड़े हुए हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रणजीत सिंह राय जी और हमारे रेलवे का जितने भी अधिकारी हैं सबको मेरी तरफ से पुरंदरी हमारी नॉर्थ ईस्ट के लिए एक हिस्ट्री डे है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रोशनी वैष्णव जी ने जन शताब्दी को आज शुभारंभ करके हमारे पूरा नॉर्थ ईस्ट को गौरवान्वित किया है। आज मोदी जी है तो मुमकिन है उसको फिर अपने प्रमाणित किया है। 140 years before गुवाहाटी को भी राजधानी दिया गया, त्रिपुरा को भी हमसफर दिया गया, देवघर एक्सप्रेस आपको दिया है। और आज हमारे नॉर्थ ईस्ट का अष्टलक्ष्मी का ऑपरेट लक्ष्मी जिसको जुगल्स ऑफ लैंड बोलते हैं, मणिपुर को भी रेलवे का मैपिंग में आपने जुड़ के हमारे नॉर्थ ईस्ट को इतना सम्मानित किया जो मोदी जी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट अष्टलक्ष्मी। हमारे भारत का न्यू इंजन है तो हमारे मोदी जी न्यू इंजन को और जन शताब्दी नॉर्थ ईस्ट का फास्ट ऐसा एक्सप्रेस है जो हमारे त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर को सुविधा देगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट हो, हमारे पेशेंट हो, सबसे हमारे टूरिज्म को इतना बढ़ावा मिलेगा उसी से, क्योंकि हमारे मणिपुर में रिम्स हॉस्पिटल्स है, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है। त्रिपुरा और आसाम का स्टूडेंट भी आते हैं। त्रिपुरा में NIP है, त्रिपुरा में फिशरी कॉलेज है, उसमें भी स्टूडेंट वगैरह आते जाते हैं। और जो भी पेशेंट आसाम को लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म का इतनी भी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे रेलवे से, उसको हम जोड़ने के लिए अच्छा मौका मिला है। पूरा भारत को बिना रेल के बैठे भारत को पहचान नहीं सकते, रेल को जान नहीं सकते। हमारी नॉर्थ ईस्ट रेल से अधूरा था, अपने रेल के जो हमारे मणिपुर के साथ त्रिपुरा को और आसाम को जोड़ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे पूरा नॉर्थ ईस्ट वासी से माननीय प्रधानमंत्री को हम बहुत মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কাছেও সময় আছে, আমার কাছেও সময় আছে। তো ট্রেন চালানোর জন্য ট্র্যাক চাই, তারা এখন সিঙ্গেল ট্র্যাক আছে ত্রিপুরা, তার জন্য আমি চাইলেও রাজধানী এক্সপ্রেস ডেলি চালাতে পারবো না, কারণ কি হামসফর এক্সপ্রেসও আসে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসও চলে, ডেমো ট্রেন, তারপর জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, তারপর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, তারপর আমাদের দেওঘর এক্সপ্রেস, তো ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস, এই সবগুলো ট্রেনই রাস্তায় চলে। তার জন্য অল্টারনেটিভ ট্র্যাক যতক্ষণ পর্যন্ত না হয় 7 দিন সব ট্রেন চলুক তার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আমরা বিভিন্ন জায়গায় হামসফর এক্সপ্রেস ব্যাঙ্গালোর দিকে যাচ্ছে, রাজধানী এক্সপ্রেস দিল্লিতে যাচ্ছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস কলকাতার দিকে যাচ্ছে, তেমন আলাদা আলাদা দিকে যে ট্রেন যায় ত্রিপুরার লোকেরা পৌঁছে যেতে পারে সেইভাবে রচনা করেছি। এবং আগামী দিনে যখন আমাদের অল্টারনেটিভ ট্র্যাক যেটা ধর্মনগর হয়ে সাবরুম পর্যন্ত যেটা সার্ভে হয়ে গেছে, সেটা হওয়ার পরে প্রতিটা ট্রেন প্রতিদিন আমরা দাবি করতে পারি, না হলে এইগুলোর কোনো ভাবতে নেই। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে অল্টারনেটিভ ট্র্যাক না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আসা যাওয়া দুইটা যে আলাদা ট্র্যাক না হয়, সেম ট্র্যাকে আসবে সেম ট্র্যাকে যাবে, তো তার জন্য সময় চাই, ওর ট্র্যাক খালি চাই। তারপরে আমার মালগাড়ি রয়েছে, প্যাসেঞ্জার গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে, তো সেগুলো দেখেই আমরা ট্রেনের ব্যবস্থা করছি। আর আগামী দিনে যেটা ধর্মনগর কৈলাসহর 75 যে পেজ আছে সেটাও আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি, সেটা রেল মন্ত্রণালয়ের কাছে পৌঁছে গেছে। আমাদের বিশ্বাস আগামী বাজেটে সেটা নিশ্চিত গৃহীত হবে, যাতে কৈলাসহর লোক दर्शन में भारतीय रेल यूं ही नित नए कीर्तिमान रचती रहे, हम सभी की मनोकामना है। और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है, ये जन शताब्दी एक्सप्रेस उसका एक सूचक है कि भारतीय रेल अग्रसर है यात्रियों की सेवा में, देश को आगे बढ़ाने में। अगरतला से दोनों जगह से ट्रेन रवाना होने के लिए आतुर, और ये जिरीबाम से ट्रेन रवाना होते हुए जन शताब्दी एक्सप्रेस हफ्ते में 3 दिन अगरतला से चलते हुए गाड़ी का नंबर रहेगा 02097 और
गिरिगांव से चलते हुए 2098 आज हम सभी के लिए हम सभी इस ऐतिहासिक पल की दुआ कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। যে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনীজি নিজেই বলেছেন, বলে দাদা আমি আসছি আপনার কাছে, এবং আকোড়া এবং কলকাতা পর্যন্ত ট্রেন রাস্তা যেটা আমাদের একসময় 1200-1300 কিলোমিটার হতো, সেটা মাত্র 600 কিলোমিটার শেষ হয়ে যাবে। তো এত ডিস্টেন্স কম হয়ে যাবে, হাফ ডিস্টেন্স। তো স্বাভাবিকভাবে তাতে নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলো লাভবান্বিত হবে, বিশেষ করে ত্রিপুরা লাভান্বিত হবে, এবং সেই রাস্তা, সেই রেলওয়ে ট্র্যাক যাতে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হতে পারে। মাঝখানে কোভিডের কারণে বাংলাদেশ পোর্শনে অনেকটা দেরি হয়েছে, আর সেটা যাতে দেরি না হয় সেদিকে কেন্দ্র সরকার নজর রয়েছে। এবং আজকে উনি ঘোষণা করেছেন যে আমি ত্রিপুরাতে আসছি এবং আপনার সঙ্গে বসবো, এবং যেই সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান করে তাড়াতাড়ি যাতে এই রোডটা খোলা যায় তার ব্যবস্থা করা। টান দিলে তো মোল্লা বুঝলে মানে মনে হলো আরে তো ডিস্টার্ব করনো জম মোবাইল ডুয়াল যাবিতে সুইচ এখন বড় দিছে টান দিয়ে গুলো গেল মোবাইল শেষ কিন্তু হয়ে গেল ভুলে যাও না